آپ سبوں کو میری طرف سے، پاسٹر ڈاکٹر تحسین گل خان کی طرف سے، سسٹر شکائنہ خان کی طرف سے اور یسوع مسیح منسٹری کراچی پاکستان کے تمام خادمین کی طرف سے آپ سبوں کو ہیپی نیو ایئر، نواں سال مبارک ہوئے۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ہو، خداوند کے اس دن کے لیے جس میں خداوند نے ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خداوند کے گھر میں ہیں، خداوند کے قدموں میں ہیں، خداوند کی پرستش کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ نئے سال میں انٹر ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہمارے لیے یہ کتنے پریولیج کی بات ہے میرے عزیزوں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں جہاں کہیں بھی مسیحی لوگ ہیں، مسیح یسوع پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب وہ نئے سال کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہوتے لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنے چرچز میں، اپنی کلیسیاؤں میں، تو میرے عزیزوں ہم جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں ہم خداوند کی پرستش کرتے 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 ہم اس وقت میں آ جاتے ہیں جب نئے سال میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، اور خدا کے گھر کے اندر ہی، خداوند کے قدموں کے نیچے ہی، آسمانی باپ یوا پاک خدا کے قوی جلالی شافی ہاتھ کے نیچے ہی، اس کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے لہو کی باڑ کے نیچے ہی پاک روح کے قبضہ میں رہتا ہوا ہر ایک شخص نئے سال میں انٹر ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، تو یہ ہم سب مسیحیوں کے لیے ایک بڑے پریولیج کی بات ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے آسمانی باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نئے سال کے میسج کے اوپر ہی ہم سیکھیں گے آج خدا کے کلام میں سے 2021 جس کو ہم سبوں نے الوداع کہا، بائے بائے کہا، خدا حافظ کہا، لیکن اس 2021 میں میرے عزیزوں ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومتیں، کمپنیز، ریاستیں اس کے اوپر ڈسکشن کر رہی تھی۔ جیسے اینڈ ہونے والا تھا، میرا بھی ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، بالکل لاسٹ ٹائم پر ہی، یعنی کہ 8-9 بجے کا 8 بج رہے ہوں گے میرے خیال میں، لیکن ایک جگہ میں تھا جہاں پہ ٹی وی چینل پہ کچھ تبصرہ نگار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ 2021 کے حوالہ سے کافی ڈسکشن کر رہے تھے، کافی ساری پارٹیز سے پوچھ رہے تھے کہ 2021 کیسا رہا، ملکی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس طرح سے کر کے ان کی ڈسکشن چل رہی تھی۔ اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی بڑی چیزیں چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں۔ تو میرے عزیزو 2021 جو کہ گزر گیا ماضی کا حصہ تھا، اب ہمارے لیے کرنٹ کیا ہے؟ 2022 یعنی کہ 2022 ایسے ہی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا 2021واں سال ہماری زندگی کا کیسا سال تھا؟ کیا کلام کے مطابق تھا یا کلام کے مطابق نہیں تھا؟ پوچھنا چاہوں گا، خدا نے جب پوری دنیا کو بنایا، کس کو؟ پوری دنیا کو جب بنایا تو سب سے پہلے دن، آج بھی سال کا کون سا دن شروع ہو گیا ہے؟ پہلا دن۔ تو خدا نے سب سے پہلے دن کیا بنایا؟ تو خدا نے سب سے پہلے دن کیا بنایا؟ روشنی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾ, मेरा नहीं ख्याल के ना वास्ते बनाई। किन के लिए बनाई? हमारे लिए बनाई। और यीशु मसीह नासरी जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। और अगर हम यीशु मसीह नासरी के पैरोकार हैं, अगर वो हमारा नूर है, वो हमारी रोशनी है, तो 2021, 2020, 2019 जितने भी माजी में हमारे साल गुजरे मेरे अजीजों, मसीही लोग मायूस नहीं होते। हालांकि 2019, 2020, 2021 इन तीनों सालों में एक बड़ा जबरदस्त एक ही काम होता रहा है। क्या होता रहा है? कोरोना। क्या होता रहा है? 2019, 2020, 2021 गुजर गए, क्या होता रहा? कोरोना 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 होता रहा। अब एक और भी कोई लहर आई, उसका तो नाम ही चेंज हो गया है। क्या है वो बहन? है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन कौन से नाम है? देखो नाम ही किड्डे औखे औखे। तो मेरे अजीजों, लेकिन मसीही लोग, अगर तो कोई मसीह में है, मेरे साथ देखें अब एक हवाला जिस पर आज हम थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत है। एक ही आयत है, जब आप खोल लें तो मुझे बताएगा ताकि हम इसकी तिलावत करें जल्दी जल्दी से। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत आप सबके लिए तिलावत करता हूं। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। पूछना चाहूंगा, इस हवाला को कितनों ने गौर से सुना? मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। कम हाथ उठे हैं। खुदा के रूह ने मुझे कहा, क्योंकि देखिए इसी पर ही हमने बात करनी है अभी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो पहली वर्ष जो तलावत की जाती है, अगर वही तो हाँ मिस कर छड़ी ना, तो फिर इतने खादम 1 घंटा बोलेगा, आधा घंटा बोलेगा, 5 मिनट बोलेगा, वो किसे पल्ले नहीं पेगा। दोबारा से पढ़ता हूं, आप सबके लिए गौर से सुनिएगा। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। किस में है? अगर कोई मसीह में है। हम कितने मसीह में हैं? हम कितने मसीह में हैं? भाई आप लोग मसीह में नहीं हैं तो फिर हाथ उठाएं। तो हम जितने हैं, हम सब क्या है? मसीह में हैं। मसीह में अब कैसे हैं ये थोड़ा सा देखना होगा हमें। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें 2019, 2020, 2021 क्या है? पुरानी। ये पुरानी हो गई। आई एम राइट? ये पास्ट था हमारा, ठीक है? अब ये नहीं है। अगर हम मसीह में हैं तो हम फिर क्या है? नया मखलूक है। और नया मखलूक पता कैसे बनता है? कैसे बनता है? मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके। कैसे? इस तरह से नया मखलूक बनता है। यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से बपतिस्मा लेने से, ठीक है? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ याद है क्योंकि मैं बपतिस्मे का मैसेज शुरू करने लगा, इसका बड़ा ताल्लुक है। अगर हम नई चीज़ों में,
نئے کاموں میں، خداوند کے مشن میں، خداوند کے کام میں، خداوند کی خدمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ضرور ہے کہ ہمیں نیا مخلوق بننا ہے. اور نیا مخلوق بننے کے لیے صرف ایک ہی کلیہ ہے، کسی صابن، کسی سرف کا استعمال نہیں، صرف اور صرف یسوع کے لہو کو مانگنے کی ضرورت ہے، یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. لیکن طریقے فرق ہیں. میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ میرا نہیں ہے. کس طرح سے ہم نجات پاتے ہیں؟ کئی لوگ صرف یسوع پر ایمان لے آتے ہیں لیکن جس طرح سے بائبل میں لکھا ہے اس طرح سے اس ایکٹ کو نہیں کرتے. تو اس لیے میں تو یوں کہوں گا کہ پھر بھی وہ نئے مخلوق نہیں ہے. نئے مخلوق کے مطابق ہمیں دیکھنا ہوگا بائبل مقدس ہمیں کس طرح سے نیا مخلوق بناتی ہے. جس طرح سے دیکھیں نیکودیمس بھی آیا یسوع کے پاس. یسوع کے پاس آ کر اس نے کہا کہ اے یسوع، تو بہت بڑا استاد ہے. جبکہ وہ خود بہت بڑا کیا تھا؟ استاد تھا، ربی استاد تھا. تو یسوع کو آ کر کہہ رہا ہے، لیکن یسوع کو پتا تھا اے بندہ جڑا نا یہ نیا مخلوق نہیں بنیا، میں نئے مخلوق کے اوپر ہوں. تو یسوع نے اسے کہا کہ جب تک کوئی انسان پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، میری ورس ایسی ہے مجھے یہ ساتھ میں جوڑنا پڑا ہے، اس وقت تک وہ نیا مخلوق نہیں. جب تک نیا مخلوق نہیں تو آسمان کی بادشاہی کو بھی دیکھ نہیں سکتا. نئے مخلوق کے لیے میرے عزیزوں پیٹرن یہی ہے نیا مخلوق بننے کے لیے کہ ہمیں پانی کا بپتسمہ لینا ہوگا. میں پھر کہتا جاؤں کہ بپتسمے پر میں آج نہیں بول رہا، لگ یہی رہا کہ شاید بپتسمے کی ٹیچنگ دے رہا ہوں. یہ اسی طرح سے ہی ہوگا میرے عزیزوں. جو اس بپتسمے کو کسی خاطر خواہ میں نہیں لاتے، میں ان کے لیے ایک پرانے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ کوٹ کروں گا. ایک شخص کو کوڑ تھا. کون سا شخص تھا وہ؟ نعمان کوڑی. ٹھیک ہے، نعمان کوڑی کو کہا گیا، الیشا نبی نے کہا کہ بھئی تو یہ جو دریا ہے اس کے اندر کیا کر 7 گوتے مار. تو اس نعمان کوڑی نے کیا کہا؟ ہماری مینٹالٹی جو بپتسمے کو، نجات کو، خداوند کے اس بڑے کام کو، خداوند کے کلام کو رد کرتے ہیں، یا ان کے لیے میں نے یہ حوالہ، خدا کے پاک روح نے مجھے کہا کہ آج یہ بات کر، کیونکہ جب تک یہ نئے مخلوق نہیں بنیں گے پرانی چیزیں ان کی زندگی سے جائیں گی نہیں، اور جو میں ان سے کام لینا چاہتا ہوں یہ وہ کریں گے نہیں. سال ہر سال نیا سال آتا رہے گا، اسی طرح باہر گلیوں میں، کوچوں میں پٹاخے پھوڑتے رہیں گے، اور بعد بہت کچھ کرنے سے میں اس پر نہیں جاؤں گا. نیا مخلوق بننے کے لیے اسی طرح سے الیشا نے بھی کہا اس نعمان کوڑی سے کہ نیا مخلوق بننا ہے تو بھائی دریا کے اندر کیا کر 7 گوتے مار. اس نے کہا یہ تو نے مجھے کون سا کام دے دیا ہے، میں تو سمجھا میں تو کوئی بڑی چیز تھا. اے بندہ، اے نبی باہر نکلے گا، مجھے سلوٹا مارے گا، میرے ہاتھ چومے گا، میرے ہاتھ رکھے گا، چھوے گا، اور چھو کے مجھے کہے گا چل بھائی یہ کوڑ جانا رہا ہے، تو میرا کوڑ چلا جائے گا. وہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آیا تھا. آج ہم بھی جب اس طرح کے پانی کے بپتسمے کو رد کرتے ہیں نا میرے عزیزو، ہم اسی مینٹالٹی میں چل رہے ہوتے ہیں. اور جب تک وہ اس مینٹالٹی میں تھا تو اس نے کیا شفا پائی؟ اس نے شفا نہیں پائی، یعنی کہ وہ نیا مخلوق نہیں بنا. نئے مخلوق بننے کے لیے اس نے وہ 7 گوتے پھر لینے پڑے اسے، پھر اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ نیا مخلوق بنا. کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، دیکھو وہ نئی ہو گئی. نیا کرنے کے لیے میرے عزیزوں ہمیں اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات سے، اپنی
टीचिंग कह लें, अपनी प्रीचिंग कह लें, अपनी थॉट कह लें, अपनी थिंकिंग कह लें, अपनी सोच कह लें, हमें उससे बाहर आना पड़ेगा और खुदा के कलाम पर गहरे तौर पर निगाह करनी होगी। इसीलिए मैंने निकोदीमस का कहा। निकोदीमस मेरे अजीजों, पता है आपको, वो एक बहुत बड़ा उस्ताद था, रब्बी था, लेकिन जब यीशु के साथ उसकी बातचीत हुई, उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से माँ के पेट में जाऊंगा, फिर मैं पैदा होऊंगा। इस तरह के सवाल जो आप सब लोग जो जानते हैं। यूहन्ना 3 बाब में जिक्र है यीशु के साथ उसकी जब बातचीत हो रही है, लेकिन यीशु ने उसको एक तरीका बताया कि जब तक कोई इंसान पानी और रूह से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही जाना तो दूर की गल है, क्या है, देख भी नहीं सकता। उस वक्त उसको समझ ना आई, लेकिन फिर बाद में हमें वही निकोदीमस जो है, खुदा यीशु मसीह नासरी को जब कब्र में रखा गया तो वही मसाला जात लेकर आया उसकी लाश को लगाने के लिए। पता आप सबको ये सुनी है ये बातें, या मैं ही कर रहा हूं? तो इसका सबूत ये है कि यीशु ने जो उसको तालीम दी नया मखलूक बनने की, पुरानी चीजों को छोड़ने की, पुरानी सोचों को छोड़ने की, उसने वो सारी चीजें छोड़ी और वो मसीह यीशु में एक नया मखलूक बना और उसके सामने ही सामने वो सारी चीजें नई होती गई। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने, मैंने पूछा था कि खुदा ने जब पूरी दुनिया को बनाया तो सबसे पहले दिन क्या बनाया? रोशनी। अगर आज तक हम अंधेरे में हैं, एक उसने रोशनी बनाई जब पहला दिन हुआ, ठीक है, दुनिया को बनाया। फिर उसी के बेटे यीशु मसीह, उसी का बेटा यीशु मसीह नासरी आया और उसने आप कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। मेरे अजीजों, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, यानी कि वो रोशनी में है, वो नूर के अंदर है। तो जब तक आप नूर का सहारा नहीं लेंगे मेरे अजीजों, ऐसे खुदावंद को पसंद नहीं आएगा। वक्त आपको पता है कैसा चल रहा है? अभी गीत हम गा रहे थे, तू तसल्लीदा चश्मा ही हवा जरी, उधर पहला मैं कोई गल कर रहा था। ये गीत इसलिए गाया गया, हालांकि आज मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई गाने का कोई मौका था, लेकिन आज ये उनके लिए था जो गमज़दा हैं। बहुत सारे हम में से, शायद यहाँ जितने को बैठे हुए हैं, हम में से कई हमारे रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब, दोस्त, कुलीग इस दुनिया से अब रुखसत हो गए हों। ऐसे मौक़ों पर हम उनको ज़रूर याद करते हैं। आई एम राइट? वैसे शायद हमें नहीं भूलता जिसकी फैमिली में से कोई शख्स चला जाता है, लेकिन इस तरह के मौक़ों पर हम ज़रूर उनको मिस करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये गाया था कि तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यरी। सिर्फ तसल्ली का सर चश्मा जो है वो यहोवा यरी है। यीशु को तकने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और आपको पता है, जब आप नए मखलूक बन जाते हैं ना, तो आप मसीह यीशु में मरते नहीं बल्कि क्या करते हैं? सो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए तसल्ली है। लेकिन ये उस वक्त है जब हम एक नए मखलूक बन चुके होते हैं। हर जड़ा मसीह होता दावा करता है ना, मैंने क्रिसमस के मैसेज पर भी कहा था कि मसीह होने का दावा बहुत सारे करते हैं। ठीक है, यीशु दी पैदाइश दे दिन नूं मनाउण दा दावा बहुत करते हैं, लेकिन मसीह दे नाल दूर दूर तक कोई वाकफियत नहीं। क्या मसीह यीशु इस दुनिया में हमारी ऐशो इशरत के लिए आया था? क्रिसमस के मौका पर मेरे अजीज़ों, आप सब ने देखा होगा हमारी नौजवान नस्ल या जिन जो आदी हैं गलत काम करने के, ठीक है ना, मैं ऑनलाइन इस तरह की बातें नहीं कहूँगा। हमारे लोगों ने, मैं जब यहाँ से भी गली से भी जा रहे थे हम लोग क्रिसमस की इबादत करके, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। जिन जिन भी मसीही गलियों में से हम गुजर के जा रहे थे, हमें बड़ा अफसोस हो रहा था। चर्चेस जैसे ख़त्म हो रहे थे, बल्कि चर्चेस अभी लगे हुए भी थे, तो हमारी मसीही नौजवान नस्ल ने अपने काम शुरू कर दिए थे। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि क्या वो नए मखलूक हैं? क्या उनको अपने आप को मसीह कहने का हक है? क्या वो अपने आप को मसीही कह सकते हैं? लेकिन वो कहते हैं, लेकिन हमें देखना होगा, हमें उनको टीच करना होगा। मेरे अजीजों, वक्त की बात कर रहा था, वक्त अभी ऐसा चल रहा है। अब वक्त कैसा चल रहा है?
शुरू में मैंने कहा था 2019, 2020, 2021 में एक चीज बड़ी बहुत कॉमन रही, क्या? कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो कोरोना ने लोगों को माली तौर पर भी क्या किया? नुकसान पहुंचाया, परेशान किया। बल्कि कोरोना की बीमारी से कई लोग मर भी गए ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਮਖਲੂਕ ਸਨ, वो खुदावंद चे सो भी गए। ठीक है, तो इस कोरोना ने 3 सालों में पकड़कर इतना ज्यादा हम लोगों को मेरे अजीजों माली तौर पर, फिजिकली तौर पर या किसी भी तरह से आप देखना चाहें तो बहुत सारे लोगों के पास जॉब ही नहीं। एग्री करते हैं मेरे साथ? बिजनेसेस का रेशो आमदनी का वैसा अब नहीं रहा। तो ये सारी चीजें अब डे बाय डे क्या होंगी? है और मुसीबतें बढ़ेंगी मेरे अजीजों। हाँ, ये तो एक वड्डी मुसीबत दे वल बाद च मावांगा। ठीक है, ये अब हालात व वाक़यात जो है ना बेहतर होने वाले नहीं है। ये सारी चीजें जो हो रही है मेरे अजीजों, ये दुनिया को, लोगों को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो मसीही लोग हैं, जो मसीह यस्सु में नए मखलूक हैं, जिनकी पुरानी चीजें जाती रही हैं, अब उनके लिए जो सब कुछ नया हो गया है, वो इन चीजों से नहीं घबराते। लेकिन उनके लिए ये प्रैक्टिस का वक्त है मेरे अजीजों। अगर आज भी हमने पिछले सालों की तरह ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार दी, ऐसे ही साल गुजार दिए, तो फिर आए मेरे साथ देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 10वीं आयत। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मेरे अजीजों, फल आप कैसे लाएंगे? फल कैसे लाएंगे? कैसे फल आएगा? मैं आगे पीछे नहीं बात करूंगा, आपसे सारी बातचीत ही हो चुकी है। जब तक आप नए मखलूक नहीं बनेंगे, फल। एग्री करते मेरे साथ? भाई, नया मखलूक बनेंगे तो ही आपकी जिंदगी में फल लगेगा। और फल जब लगेगा तो आपका फल किसको पसंद है? खुदावंद यस्सु को पसंद है। हमारे आसमानी बाप को वो फल पसंद है। अगर हमारे साल ऐसे ही गुजर गए हैं और आज तक मैं अकेला ही चला फिरता जा रहा हूं, और मैं आज तक अगर नया मखलूक नहीं बना, अगर मैं बपतिस्मा याफ्ता भी हूं, अगर मैं निजात याफ्ता भी हूं, और मैं फिर भी अगर नया मखलूक नहीं हूं, तो इसके लिए मैंने कहा कि फिर आपका फल बताएगा कि आप वाकई नए मखलूक बन गए हैं। और नया मखलूक बन जाए मेरे अजीजों, ये साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। और ये बड़ी तंगी के साल अब शुरू होने को हैं। हल्का सा यहाँ पे टच करूंगा, ये सारी मुसीबतें, इतनी बड़ी मुसीबत अभी तक नहीं आई जितनी बड़ी मुसीबत के बारे में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने मत्ती रसूल ही की मार्फत लिखी गई अंजील में उसके 24वें बाब में कहा है कि इतनी बड़ी मुसीबत जब से दुनिया बनी है। कब से? जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर आज तक, अगर आज तक हम भी बैठे हुए हैं तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई। लेकिन एक बड़ी मुसीबत आने को है, उसके लिए नए मखलूको तैयारी पकड़ो। नया मखलूक बनो। अगर नए मखलूक नहीं बने, अगर नए मखलूक बन गए हैं तो फल के लिए क्या करना है? आए मेरे साथ एक और हवाला देखें। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक। समझ आ रही है बातचीत की? समझ आ रही है किसके ऊपर बातचीत चल रही है?
नए मखलूक पर। हालेलुया, शाबाश। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब उसकी 6 से 9 आयत तक आप सबके लिए पढ़ता हूं। फिर उसने ये तमसील कही, किसने? यीशु ने। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से, कितने बरस से? 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उसे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद। ये 3 साल से ये खुदा यीशु मसीह नासरी एक तमसील कह रहे हैं, ठीक है? आसमानी बाप की ये तस्वीर है, ठीक है, जो मालिक है। और बागबान कौन है? आप यीशु मसीह नासरी, ठीक है? और दरख्त कौन है? हम सब दरख्त हैं। और अगर उस दरख्त ते फल नहीं लगाना, फल तो मेरी मुराद है नहीं कि तुसी हुणे इथों बाहर जाओ तो फटाफट जाके अपने ते अंब लटका के आ जाओ, कोई खीरे लटका के आ जाए, कोई अपना इस तरह के जो फ्रूट होते हैं, कोई सेब, कोई ये कोई वो। नहीं, फल अगर मसीही लोग हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे फल की, कौन से फल की बात हो रही है। कोई बताएगा मुझे दिलेरी से कौन से फल की बात हो रही है? रूहानी फल। लेकिन फिर भी फल केड़ा फल? रूहें बचाने का फल। मां जी ने कितनी सोहनी एक गल से मुकाशे दी गल। रूहें अगर आप नहीं बचाएंगे मेरे अजीजों, तो इसका मतलब ये है कि आप नए मखलूक नहीं है। जब आप खुद नए मखलूक नहीं है तो फलदार आपकी जिंदगी नहीं है। आपने रूहें नहीं बचाई। मसीहियों, हम सब पर यह वाजिब होता है, इरशाद आजम भी है कि सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ, उनको तालीम दो। जदों असी खुद ही हजे तक मखलूक नहीं बने, नई मखलूक नहीं बने, असी किसी को की तालीम देवांगे? हम किसी को क्या टीच करेंगे? हम किसी को क्या प्रीच करेंगे? हम किसी से क्या बात करेंगे? फिर तो वही बात है, ये सुने का क्या अंधा अंधे को राह दिखाएगा? नहीं। क्यों? अगर वो दिखाएगा तो दोने कितने डिगणगे? गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए हमें ये चीजें रूहानी आंखें लेनी होंगी, उस तालीम को लेना होगा, ताकि हम इस साल, ये 2022 जो साल जो शुरू हो गया है, ये भी ऐसे खत्म हो जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप पीछे पलट के देखेंगे ना, कोरोना सानू अभी तक नहीं भुलिया। अगर आप कोरोना को याद करें तो कोरोना को हुए हुए कितने साल हो गए? 3 साल। तुसी पीछे मोड़ के देखो, इंज लगेगा जन 3 दिन पहला की गल है। ऐसा ही है। तो ये भी 2022 भी ऐसे ही गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए मेरे अजीजों, हमें तैयारी करनी होगी। देखिए, अगर तो आसमानी बाप आया है, अगर हमने कहा कि हम दरख्त हैं, हम दरख्त हैं, और अगर हम में वो फल नहीं लगा हुआ, तो आसमानी बाप तो कहता है कि ये भाई जगह क्यों घेरे हुए है। हमने इन मैसेजेस को ना बस ऐसे संडे स्कूल के लिए समझ लिया है, लेकिन मेरे अजीजों, अब हमें जागने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि वक्त हालात ऐसे अब आने को है कि हर एक जान जो है वो फंस जाएगी। खासकर मसीही लोग जो है ना, जो अभी तो दावे करते हैं कि यस मैं मसीही हूँ, मैं खुदा यीशु मसीह का पैरोकार हूँ। पता है आपको वो बड़ी मुसीबत जो आ रही है? चलो उस बड़ी मुसीबत का भी नाम बता देता हूँ। कौन है? मुखालिफ मसीह। वो एक बड़ी मुसीबत है। उसके बारे में यीशु ने कहा कि जब वो आएगा ना, तो इतनी बड़ी मुसीबत
ہجے تک اسی نہیں ویکھی. اسی کرونا نوں سمجھنا بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے آگے رتی برابر بھی نہیں ہے, لیکن یہ اسی کی ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں, اس کے لیے راہ تیار ہو رہی ہے. یوحنا اصطباغی نے بھی آ کے کس کی راہ کو تیار کیا تھا؟ مسیح یسوع کی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ابلیس, جو کہ ابلیس ہے جس کو ہم مخالف مسیح کہہ کر پکار رہے ہیں, اس کی بھی راہ تیار کرنے کے لیے اس کے جو چیلے میلے کہہ لیں یا اس کے جتنے بھی کارندے ہیں یا جتنی بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہیں. تو اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں پہلے نمبر 1 نیا مخلوق بننا ہے. اپنی پرانی چیزوں میں سے نا ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اسی 60 سال دے بھی ہو جانے ہیں, لیکن ساری زندگی دے وچوں نا وہ پرانیاں چیزاں ایگری کرتے. بھائی آپ چاہے 60 سال کے ہیں, 90 سال کے ہیں, 100 سال کے ہیں, میں تو یوں کہوں گا کہ اگر آپ مسیح میں نئے مخلوق نہیں ہیں تو تینوں انی عمر پان دا بھی کوئی فائدہ نہیں. خداوند کے کلام کے مطابق میں بات کر رہا ہوں میرے. یوں تو ہم اپنے بزرگوں کو چومتے ہیں, ان کو بہت پیار کرتے ہیں, اور پیار کے لائق ہے. کلام کہتا ہے تو ان کی عزت کر, ہم نے ان کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کلام اس کے بارے میں صاف طور پہ کہتا ہے اگر تو نیا مخلوق نہیں ہے, پرانی چیزیں تیری اگر زندگی سے نہیں گئیں اور تو نے اگر وہ سب کچھ نیا نہیں کیا جو تجھے کر دینا چاہیے تھا, اور اگر تیری زندگی جو ہے وہ بے پھل ہی ہے, تو اس کے لیے آسمانی باپ بھی کہتا ہے کہ یہ جگہ کیوں گھیرے ہوئے ہے, اس کو یہاں سے کاٹ ڈالو. یہ وقت میرے عزیزوں آنے کو ہے. اس وقت سے پہلے, اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے, ہمیں تیاری کرنی ہے. آج سال کا پہلا دن ہے. میں آپ سبوں کو موٹیویٹ کروں گا, آپ سبوں کو انکریج کروں گا کہ میرے عزیزوں آئیں, اپنے اپنے درختوں پر غور کریں, اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر میں نیا مخلوق بن گیا ہوں تو اگر پرانی چیزیں نہیں گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پھل جو ریکوائرڈ ہے, جو آسمانی باپ کو چاہیے, جس کے لیے اس کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ناصری آج بھی ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. باغبان نے یہاں پہ شفاعت کی ہے آسمانی باپ سے, اس مالک سے, اس درخت کے مالک سے. کیا کی ہے؟ شفاعت کی ہے. کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا, وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اگر جب بھی خداوند آئے آپ کی زندگی سے پھل کو ڈھونڈنے, یہ بات خدمت گزاروں کے لیے بھی ہے. تو اگر پھل نہیں ہے نا تو پھر تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو, مجھے, ہم جتنے خدمت گزار ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ذمے ہے کوئی کام اگر لیں گے, کام کریں گے تو میرے عزیزوں پھر ہی پھل لگے گا. ٹھیک ہے, ورنہ ہم اگر نام کے ہی خادم کہلوانا چاہتے ہیں تو یوں تو پھر آپ کو دنیا میں ہر دوسرا بندہ خادم کہلواندہ نظر آئے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ایسے بہت سارے خادم ہیں جو اپنے آپ کو خادم, جو خادم کیا جاتا ہے خوش ہوں دینے, لیکن خادمہ والے کام نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ پھل نہیں ہے. پھل ہوگا تو وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پھل کسی اور کو نہیں دکھانا, خداوند کو آپ کے پھل سے سروکار ہے. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ یہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا, اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. اس نے جواب میں اس سے کہا, اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے. 2022 جے خداوند کہہ رہا ہے کہ انہوں ایک سال اور دے دے. کنوں؟ لمحہ ہو گیا, میسج ختم کرنے کی طرف آ رہا. 2022 دے وچ خداوند آ گیا ہے. اور اگر ہم درخت ہیں, ہم نے کہا اگر ہم درخت ہیں, اگر پھل نہیں لگا ہوا تو میرے عزیزو آج وہ دن ہے. میں نے کہا کہ پورا سال ہم پھر اس طرح سے جمع نہیں ہوں گے یا ہوں آگے اس طرح سے جمع ہوں گے. وہی بتائیں دلیری سے ہے, اس طرح سے نہیں ہوں گے. پتہ ہے آج آپ خاص نئے سال کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں,
यूं तो आप एवरी वीक, कई वीक में 2 बार भी करते हैं, कई वीक में 3 बार भी करते हैं, कई लोग अपने घरों में मसबे बनाए हुए हैं डेली बेसिस पे करते हैं। लेकिन मैं जिस बात के ऊपर हूँ, हम इस तरह से नए साल की इबादत, जैसे आज दिन गुजरेगा ना, तो फिर ये दिन अगले साल ही आएगा। किदों आएगा? 2023 से। लेकिन 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ठीक हो जाओ, देख दरख्त की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। हम में से कोई नहीं जानता, मैंने पहले कहा कि 2021 में हमारे कई रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब, अच्छे हम जिनसे प्यार करते थे, वो हमसे चले गए। और अगर हमारा ये 2022 जिसमें आज तो हम हैं लेकिन कल का हमें नहीं पता, तो फिर मेरे अजीज़ों हम टू मच लेट हो जाएंगे। और हम उस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए खुदा यीशु मसीह नासरी हमारे लिए शिफायत, वो देखिए अभी तक वो शिफायत कर रहा है, लेकिन वो शिफायत हमेशा, अगर हम उसके लिए शिफायत ही सोचते रहेंगे। इस हवाला से मैं एक खादम के मैसेज में सुन रहा था, एक शख्स था, आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा। एक शख्स था, खुदावंद का खिदमत गुजार था, खुदावंद की खिदमत करते करते, यानी कि वो खिदमत गुजार, जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा दा खादम कहलवान लियो खुदा दा खादम से, लेकिन खुदा दा खादम नहीं सी। बहुत दफ़ा उसे मौका मिला कि वो खुदा की खिदमत करे। खुदा ने खुद उसके लिए वसाइल पैदा किए कि वो खिदमत करे, रूहों को जीते, फलदार इसकी ज़िंदगी हो, लेकिन उसने एक भी काम ना किया। और यूं करके उसने खुदा यीशु मसीह नासरी की बिशारत के काम को भी ना किया, उस इरशाद आज़म पर भी उसने कोई काम ना किया, यानी कि उसके वसीला से कोई एक रूह, एक जान भी ना बची। और एक वक्त ऐसा आया मेरे अजीज़ों कि जब उसका 2021वां साल ख़त्म होने पे आया, जब उसकी ज़िंदगी 2021 में, इसलिए कह रहा हूँ 2021 हमने अभी कुछ मिनट पहले गुजारे हैं, तो उसकी ज़िंदगी के जब लम्हात ख़त्म होने की तरफ आए, एक ऐसी बड़ी बीमारी ने उसे आ घेर लिया और वो इतना बीमार पड़ गया कि वो जिन खादमों के ज़हरे साया रहता था ना, उनको उसने दुआ के लिए बुलाया कि मेरे तक दुआ करो, मैनू शिफा मिले, मैं यानी कि ज़िंदगी और मौत दी जंग लड़ रहा वहाँ, तुसी मेरे वास्ते दुआ करो। तो खादम उसके घर पे गए घर, लेकिन खादम जैसे ही गए तो खादमों ने भी उसको नहीं पहचाना। इतनी हालत ख़राब हो गई उसकी, खादमों ने भी नहीं पहचाना। उन्होंने कहा भाई मतलब तू है कौन? तो उसकी तस्वीर थी, उसकी वाइफ उसकी तस्वीर लेके आई, उसने दिखाया कि भाई ये है। उन्होंने एकदम पहचान लिया। उसको बोले यार हम तो, ये तो हमारे साथ खिदमत करता रहा है, मतलब ठीक है वैसे नहीं इसने की, लेकिन था तो हमारे साथ ही। तो उस शख्स ने उन खादमों को कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि खुदावंद मुझे फिर से चंगा करे। क्या करे? चंगा करे। और मैं कराचियों बवांगा गड्डी दे विच, किदे च? गड्डी विच, ट्रेन दे विच। कराची से मैं बैठूंगा और आखिरी ट्रेन कित्थों तक जाती है? पिशावर। ठीक है, पिशावर तक मैं जावांगा और मैं ऐहो ही कहता जावांगा कि यस्सू नजात दहिंदा वे, यस्सू शाफी है, यस्सू अगर हमारी जिंदगी च नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि बाप दे कोल जान दा भी सिर्फ वसीला जिहड़ा ओ ओदा बेटा यीशु मसीह नासरी है। यानी कि मैनू तुसी इन्ना क चंगा कर दवो कि मैं ए काम इरशाद आज़म जिहड़ा है ओ मैं दवा। लेकिन आप लोग यकीन करें, खुदा ने उसे मौका, सम टाइम हमें ऐसा ही लगता है कि 2019 भी आया सी ना, गुजर गया, 20 भी आया गुजर गया, 21 भी आया सी, देखो आज जो भी गुजर गया। लेकिन मेरे अजीजों हम में से किसी को नहीं पता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें नहीं पता 2022 अब किस किस के लिए कौन कौन सी राह खोल के बैठा हुआ है। हमें फिर शायद मौका ना मिले। खुदावंद चाहता है हम नए मखलूक बन जाए, खुदावंद चाहता है हम फलदार
हमारी फलदार जिंदगी हो, हमारे वसीला से लोग निजात पाए। अगर खिदमत गुजारी, ये इरशाद आज़म जो है ना, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये खादमों की जिम्मेदारी नहीं है। एग्री करते हैं? कोई खादम तो नहीं कहेगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये किसी खादम की जिम्मेदारी नहीं है इरशाद आज़म को फैलाना, बल्कि जितनों ने मसीह यस्सु पर ईमान रख के बपतिस्मा लिया है, पता है आपने जो बपतिस्मा लिया है वो किस चीज की निशानी है? शागिर्द बन गए। ये कौन बोला है भाई? शागिर्द बन गए हैं। और शागिर्दा का काम पता सी केड़ा सी? रूहें जीतना। ठीक है, तो मेरे अजीजों, आए इससे पहले कि ये 2022 के अंदर, देखो ये जैसे जैसे डेज गुजरते जाएंगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम देखते हैं, हम खादा में ना लोग जब जल्दी जल्दी या आते हैं खुदावंद में, तो उस वक्त बड़े गर्मजोशी के साथ भरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना, उन्हें सरमन सुनिया ना, तू ही जिद मैं स्टोरी सुनान दिया था, मैं काफिया ने मुंह वेखन दिया सा, यानी कि वो एक सोच में चले गए थे। हम इंसानी नेचर है हमारी, ठीक है ना, वक्ती तौर पे हमें वो अपनी वो पिक्चर नजर आती है, लेकिन अबलीस जो है ना वो फौरी तौर पे हमें कहता ओ छाड़ दो यार, इन्हों का काम ही डराना होता है। लेकिन मैं नहीं डरा रहा आप लोगों को। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, किसकी जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है? दरख्त की, उस दरख्त की जड़ पे रखा हुआ है जो फलदार नहीं है। ठीक है, जो फलदार नहीं है उसे काटा और कहाँ डाले जाने वाला है? आग में। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों देखें, 2022 हम लोग यूँ तो हम चर्चेस में आज भी आप देखेंगे सब लोग अपने अपनी ब्लेसिंग के लिए दुआ करेंगे, फाइनेंशियल्स के लिए। किसके लिए? बड़े जोरों के साथ दुआ होगी। कई तो फरमाइशें करते हैं साढ़े वास्ते फाइनेंशियल वास्ते दुआ करो, लेकिन फाइनेंशियल के हवाला से आखिरी हवाला पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। मेरे साथ देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत। किथे ना जमा करो, ऐ यस्सु खुदावंद आसमानी बाप, आज नए साल में हमारे लिए आसमान के दरीचे खोल के बरकतां दे मींह बरसा, मेरे रोजगार दे विच बरकत पा दे, मेरे कारोबार दे विच बरकत पा दे। कादे लिए? आज इसी तरह की दुआएं होगी। सच कह रहा हूं आप लोगों को, ये 2022 जैसे स्टार्ट हुआ है ना, इसको हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से हम ज्यादा उसको कह सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों फाइनेंशियल से ज्यादा हमें देखना होगा कि खुदावंद को आपका जो माल है ना वो कहां पर होना चाहिए। दोबारा पढ़िएगा भाई। कहां पर माल जमा करो? आसमान पर। कैसे जमा करेंगे? जब तक नए मखलूक नहीं बनेंगे। आपके रुपए पैसे से खुदावंद को कोई सरोकार नहीं है। आप जो कमाते हैं ना, आपकी ये वाली जो ब्लेसिंग है ना, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसका सिर्फ इस दुनिया के साथ ही ताल्लुक है। और आसमान पर जो आपको चाहिए ना, आपका अच्छा खजाना वहाँ पर जमा हो, तो वो आप वो जो रूहें जीतेंगे ना, वो जो फल आपकी ज़िंदगी में लगेंगे ना, या जिसके साथ बैठ के आपने मसीह यस्सु की बात की होगी ना, इरशाद आज़म उसके साथ शेयर किया होगा, कलाम के बारे में सिखाया होगा, बुराई के बारे में उसको बताया होगा कि भाई ये बुराई है, इससे दूर हो, इससे खुदा को नफरत है। इसी गुनाह को हमारी जिंदगी से दूर करने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा था, और उसी के लहू के वसीला से ही हम पाक और साफ होते हैं। तो फिर मेरे अजीजों, इस तरह के जब आप काम करेंगे तो ये वाला काम जो है वो है असल में हमारा माल, जो कहां पर जमा हो रहा है? आसमान पर, जहां वहां पर जमा हो रहा है, जिथे की नहीं लगेगा। भाई ने क्या पढ़ा अभी? न चोर नकब लगाएगा, न चुराया जाएगा, न जंग लगेगा, न कीड़ा खाएगा। ये सारी चीजें आपको जमीन पर मिलेंगी, आसमान पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
تو آسمان پر میرے عزیزوں اپنے خزانے کو جمع کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دیں.